राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 64वें एनडीसी पाठ्यक्रम के संकाय और पाठ्यक्रम सदस्यों से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि आज हमारी सुरक्षा संबंधी चिंताएं क्षेत्रीय अखंडता के संरक्षण से आगे बढ़कर राष्ट्रीय कल्याण के अन्य क्षेत्रों जैसे आर्थिक, पर्यावरण, ऊर्जा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों को भी शामिल करती है। इन चिंताओं के समाधान के लिए गहन शोध की आवश्यकता है और समग्र दृष्टिकोण की जरूरत है। Dear officers, today our security concerns extend beyond preservation of territorial integrity and encompass other areas of national well-being such as economic, environmental, energy security and cyber security related issues. Addressing these concerns requires intensive research and calls for a holistic approach in dealing with these wide-ranging issues. Here I would like to highlight the issue of cyber security. Cyber attacks have emerged as a major threat to the national security. Dealing with and countering cyber attacks requires high-end technological intervention as well as robust digital infrastructure along with a well-trained and specialized human research. It is an issue that affects the entire governance framework of the country across the sectors. This is one of the areas where our civil services and armed forces must join hands to create a secure nationwide system capable of fighting such attacks. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में आदित्य बिड़ला समुदाय पहल और ग्रामीण विकास केंद्र की अध्यक्ष राजश्री बिड़ला को 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 प्रदान किया। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि राजश्री बिड़ला पिछले 3 दशकों से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न रूपों में मानवता की सेवा कर रही हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुनते ही देशभक्ति की याद आ जाती है। शास्त्री जी जनसेवा की परिभाषा देते हैं। वे आत्म बलिदान के प्रतीक थे। शास्त्री जी ने आचरण और व्यवहार की मिसाल कायम की, उपदेशों की नहीं। Shastri ji stood for self-sacrifice. Shastri ji exemplified by conduct, by practice, not by sermonizing. The entire nation stood with him when we faced near hunger crisis. He was the first one to innovate participation of the people by a clarion call. Avoid a meal, if I'm not mistaken, on Monday. Diminutive, like Anil and there. But a tall figure. There are personalities that are not required to be sustained by event management or systemic acting. They live in our memory, they guide us, they inspire us, they motivate us. His clarion call, I belong to both categories as a matter of fact, Jawan and Kisan, was not just a call. The call was generated by then contemporaneous scenario, a threat of unimaginable dimension. Imagine the scene under which he took charge. He was the only one who could take it. Look at the highest standards of public life. When he was holding a ministerial portfolio, and then there was a lapse not because of him, but he went beyond the copybook.
He took the entire responsibility and was persuaded to be minister without portfolio. I see the family continuing in the same stream. They have lived by his principles. चार दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे जमाइका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद हाउस पहुंचने पर डॉक्टर एंड्रयू होलनेस का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जमाइका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस की मौजूदगी में भारत और जमाइका ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेलों के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। शिष्टमंडल वार्ता के बाद प्रधानमंत्री ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि डॉक्टर होलनेस अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर आए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि उनकी यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पूरे कैरेबियाई क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ऊर्जा देगी। प्रधानमंत्री होलनेस लंबे समय से भारत के मित्र रहे हैं। मुझे कई बार उनसे मिलने का अवसर मिला है और हर बार मैंने उनके विचारों में भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को महसूस किया है। मुझे विश्वास है कि उनकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पूरे कैरेबियन क्षेत्र के साथ हमारे एंगेजमेंट को नई ऊर्जा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लघु उद्योगों, जैव ईंधन, इनोवेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में जमाइका के साथ अनुभव साझा करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जमाइका के संबंध हमारे साझा इतिहास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित है। भारत और जमैका के संबंध हमारा साझा इतिहास, साझा लोकतांत्रिक मूल्य और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज पर आधारित है। 4 C's हमारे संबंधों को अंकित करते हैं: कल्चर, क्रिकेट, कॉमनवेल्थ और कैरिकॉम। आज की बैठक में हमने सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग सुदृढ़ करने पर विचार किया और कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा जमाइका की विकास यात्रा में एक विश्वसनीय और प्रतिबद्ध विकास भागीदार रहा है। भारत और जमैका के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि हो रही है। जमैका की विकास यात्रा में भारत सदैव एक विश्वसनीय और प्रतिबद्ध डेवलपमेंट पार्टनर रहा है। इस दिशा में हमारे सभी प्रयास जमैका के लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित रहे हैं। आईटेक तथा आईसीसीआर स्कॉलरशिप के माध्यम से हमने जमैका के लोगों के स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान दिया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लघु उद्योग, बायोफ्यूल, इनोवेशन, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में हम अपना अनुभव जमैका के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि रक्षा के क्षेत्र में भारत जमाइका सेना के साथ प्रशिक्षण लेगा। संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद को बड़ी चुनौती बताते हुए दोनों देशों ने इसके खिलाफ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। रक्षा के क्षेत्र में भारत द्वारा जमैका की सेना की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर हम आगे बढ़ेंगे
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म हमारी साझा चुनौतियां हैं। हम मिलकर इन चुनौतियों का सामना करने पर सहमत हैं। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। स्पेस सेक्टर में भी हमें अपना सफल अनुभव जमैका के साथ साझा करने में खुशी होगी। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने कई वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि सभी तनावों और विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए। हम मिलकर वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। भारत और जमैका दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत सभी वैश्विक संस्थानों में सुधार की जरूरत पर बल दिया। भारत और जमैका एक मत है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सहित सभी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार आवश्यक है। इन्हें समकालीन रूप देने के लिए हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। भारतीयों ने करीब 2 सदी पहले जमैका में दस्तक दी थी। इस दौरान जमैका के विकास में उन्होंने अहम योगदान दिया। भारत और जमैका के बीच भले ही विशाल महासागरों की दूरी हो, किंतु हमारे मन, हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास एक दूसरे से जुड़े हैं। लगभग 180 वर्ष पहले भारत से जो लोग जमैका गए थे, उन्होंने हमारे पीपल टू पीपल टैग की मजबूत नींव रखी थी। आज जमैका को अपना घर मानने वाले लगभग 70,000 भारतीय मूल के लोग हमारी साझा विरासत का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उनकी देखरेख के लिए मैं प्रधानमंत्री होलनेस और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमैका उच्चायोग के सामने की सड़क का नाम जमैका मार्ग रखने का निर्णय लिया। जिस प्रकार भारत से योग, बॉलीवुड और फोक म्यूजिक को जमैका ने अपनाया गया है, उसी तरह जमैका के रेगे और डांस हॉल भी भारत में पॉपुलर हो रहे हैं। आज किए जा रहे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम से हमारी आपसी नजदीकियां और बढ़ेगी। हमने दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने सड़क का नाम जमैका मार्ग रखने का निर्णय लिया है। यह सड़क भावी पीढ़ियों के लिए हमारी गहरी मित्रता और हमारे सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम हमारे व्यक्तिगत संबंधों को भी बढ़ाएगा। क्रिकेट प्रेमी देशों के रूप में स्पोर्ट्स हमारे संबंधों में एक बहुत मजबूत और महत्वपूर्ण कनेक्टिंग लिंक रहा है। कर्टनी वॉल्स की लेजेंडरी फास्ट बॉलिंग हो या क्रिस गेल की धुआंधार बल्लेबाजी, भारत के लोगों में जमैका के क्रिकेटर्स के लिए विशेष लगाव रहा है। हमने स्पोर्ट्स में अपना सहयोग और गहरा करने पर भी विचार विमर्श किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की चर्चाओं से निकले आउटकम्स हमारे संबंधों को उसेन बोल्ट से भी तेज गति देंगे और हम निरंतर नई ऊंचाइयां छूते रहेंगे। जमैका के प्रधानमंत्री ने कहा कि जमैका ने भारत के साथ मजबूत संबंधों को आजादी के बाद से ही महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीयों ने करीब 2 दशक पहले जमैका में दस्तक दी थी और उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में जमैका के विकास में योगदान दिया है। जमैका के प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ने के साथ साथ कई अन्य प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी भी मजबूत होगी। भारत जमैका की विकास परियोजनाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019 में
जमाइका के किटसन कस्बे में ग्रामीण विकास परियोजना के लिए $10 लाख की सहायता की घोषणा की थी। यह पहल जमाइका के सतत विकास के प्रति भारत की वचनबद्धता को प्रदर्शित करती है। व्यापार और निवेश के मोर्चे पर दोनों देशों ने अच्छी प्रगति की है। भारत और जमाइका के बीच व्यापार $6 करोड़ 60 लाख तक पहुंच गया है। वहां भारत का निर्यात निरंतर बढ़ रहा है। भारतीय कंपनियों की जमाइका में विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और बीपीओ सेक्टरों में पहुंच बढ़ी है। इससे पहले जमाइका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर गए, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर होलनेस भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर है। डॉक्टर एंड्रयू होलनेस की यह पहली भारत यात्रा है। 4 दिन की यात्रा के दौरान वे उद्योग और व्यापार जगत प्रमुखों से भी मिलेंगे। जमाइका के प्रधानमंत्री वाराणसी का भी दौरा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश के विकास में युवाओं की अहम भूमिका है। उनके कारण आज दुनिया में भारत की सशक्त छवि बन रही है। वो आज राजधानी में नई दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत के लोगों की प्रतिभा का लोहा मान रही है। भारत के लोग जिस भी देश में रहे हैं, वहां अपना अहम योगदान दे रहे हैं। उन्होंने युवाओं से आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत में भूमिका निभाने का आह्वान किया। दुनिया में मैं देखता हूं भारत के नौजवानों की जो चिंतन, मनन, सृजनशीलता, कार्यदक्षता, कुशलता अद्भुत है। और उसी के कारण आज दुनिया के अंदर भी, उन विकसित देशों के अंदर भी भारत के नौजवानों की टैलेंट की आवश्यकता है। और दुनिया के उन विकसित देशों के अंदर भी उस देश के विकास के अंदर, उस देश के आर्थिक तंत्र को सुव्यवस्थित करने में, वहां के इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर के अंदर भी और वहां के तकनीकी क्षेत्र के अंदर भी भारत के नौजवानों का योगदान है। और इसीलिए मुझे मेरे देश के नौजवानों पर भरोसा है। उन्होंने जो कुछ भी इस देश के अंदर सीखा है, अनुभव प्राप्त किया है, जो कुछ भी इन्होंने नया इनोवेशन किया है, उसमें भारत की संस्कृति, भारत के आध्यात्मिक के विचार उनके मन में है। उन्होंने भारत की संस्कृति, उनके विचार, उसके गहन अध्ययन को समझकर अपने जीवन की शिक्षण अवस्था के अंदर ही, चाहे विद्यालय में हो, चाहे महाविद्यालय में हो, चाहे मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज के अंदर हो, उनकी प्रारंभिक नींव ही उस गुरुकुल व्यवस्था से पड़ी है, जहां जीवन में अनुशासन है, अच्छी संस्कृति और अच्छे संस्कार हैं। और इसीलिए आज हम दुनिया के अंदर भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनका नया इनोवेशन करने की क्षमता, उनमें नए बदलाव करने की क्षमता अद्भुत है।